अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने कलेक्शन ऑफ डाटा डिस्कस किया और आप जान गए कि पहले डाटा क्या होती है, और ये भी आप जान गए कि हमारे पास दो तरह की डेटा होती है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो वहाँ हमने सोर्सेज डिस्कस किए, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट प्राइमरी डेटा इज़ एंड व्हाट सेकेंडरी डेटा। इसके अलावा वी हैव टू डिस्कस द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा और सिंपली द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा एंड द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। चलिए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी डेटा। डेटा आप जानते हैं, बट डेटा वी मीन इन्फॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। देखिए, प्राइमरी डेटा इज द डेटा which refers to that statistical information or simply that data which is collected for the first time by the investigator himself for the problem under study. That is, in case of primary data, the data is collected by the investigator himself and it's collected for the first time. इसीलिए इस डेटा को हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहते हैं। इट इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंड इट्स ओरिजिनल इन करेक्टर, इट्स ओरिजिनल डेटा, इट्स ओरिजिनल बिकॉज it has never been used by any other agency and it is original because it is for the first time collected, right? So it is an original recording of an investigator. It is original recording of an investigator required to meet a particular object. It is essentially a first hand information, right? Now why is it primary? It's called primary because it's collected from the very source, where information is generated. Such an information is a raw data and it requires further processing of it. That is, it needs to be organized. और ऐसी डेटा में और ऐसी कलेक्शन में हमें हाई डिग्री ऑफ टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा गुड डिग्री ऑफ टाइम चाहिए, फिर पैसा चाहिए, फिर एनर्जी चाहिए, फिर नॉलेज चाहिए, फिर ट्रेन एंड स्किल्ड मैन पावर चाहिए, क्योंकि इन ए वे इट्स एक्सपेंसिव सिस्टम. इट इज़ देयर फॉर कलेक्टेड मोस्टली बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज वायर देयर आर सफिशिएंट फंड्स, सफिशिएंट मैन पावर. गवर्नमेंट एजेंसीज ये ऐसी डेटा कलेक्ट करते हैं. फिर हमारे पास कुछ कमीशनर्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है, विच कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. उनके पास मैन पावर और फाइनेंस की कमी नहीं होती है, या कोई नेशनल सर्वे होती है तो वहाँ हम प्राइमरी डेटा का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड दैट प्राइमरी डेटा इज द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फ्रॉम द एक्चुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? सेकेंड वी हैव टू डिस्कस सेकेंडरी डेटा. नाम से ही पता चलता है, it is a kind of second hand data. Why second hand? Because it is the data which has been collected by some institution, by some agency for their own purposes. But if we are using the data collected by them for our purpose, it becomes secondary for us. So defining secondary data, we can say that secondary data refers to a second hand information. It is second hand information. These are not originally collected, rather obtained from already published or unpublished sources, right? So secondary data are those which are already in existence. ये पहले से मौजूद होती है, and which have been collected for some other purpose. And this thing makes it the second hand. Primary data was the first hand and secondary is it is second hand. और इस डेटा की खूबी यह है कि इट्स कंपैरेटिवली लेस ओरिजिनल होती है, लेस ओरिजिनल इन नेचर, विच हैड बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज एंड फॉर our information.
it is less expensive if we make use of the second hand data or the secondary data, because for us it is easily available, it needs less time, less finance and manpower. Therefore an individual scholar uses such a data in his inquiry. But while making choice of the second hand data, an invigilator or an investigator needs to be very cautious, because the purpose varies. The data which was collected by some other agency, and for them it was original and their purpose was different, but when we are using for our purposes, तो इसका सिलेक्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है, और यहाँ हमने कॉशियस रहना, इसलिए क्योंकि पर्पस हमारा मैच नहीं होता, इसलिए वी नीड टू बी कॉशियस, राइट। और सच इंफॉर्मेशन समटाइम्स लेक्स रेलिवेंस, इसलिए कॉशियस रहना ज़रूरी है कि रेलिवेंस इसमें कम होती है, और इसके साथ साथ देयरफॉर कंटेन्स लेस रिलायबिलिटी, इस पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते कि इट इज़ लेस रिलायबल। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। देखिए, अगर हम दोनों का नेचर देखें, प्राइमरी डेटा ओरिजिनल इन नेचर है, जबकि सेकेंडरी ओरिजिनल नहीं है, इट लेक्स ओरिजिनलिटी। सेकेंडरी डेटा लेक्स ओरिजिनलिटी, एंड फॉर प्राइमरी डेटा द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज़ वेरी हाई। हम कह सकते हैं कि इट्स एक्सपेंसिव, महंगी है, क्योंकि इट रिक्वायर्स मोर टाइम, मोर मैन पावर, इसलिए ये एक्सपेंसिव। जबकि सेकेंडरी डेटा ये लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव इन द सेंस इट रिक्वायर्स लेस टाइम, लेस मैन पावर। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस वी कैन से इज द सूटेबिलिटी ऑफ द पर्पस। सूटेबिलिटी ऑफ द पर्पस। देखिए, जो प्राइमरी डेटा होती है ये मोर रिलायबल होती है, इस पर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इट्स ओरिजिनल एंड वी कलेक्ट इट कीपिंग इन माइंड आवर पर्पस। बट व्हेन वी रिलाई ऑन द सेकंड हैंड डेटा, ये लेस suitable होती है फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी इन हैंड, बिकॉज these are collected for some other inquiry, for some other purpose. Then one more point of difference we can say is the use of caution. देखिए, प्राइमरी डेटा डू नॉट रिक्वायर एनी कॉशियसनेस और डू नॉट रिक्वायर मच कॉशन, वायरएज सेकेंडरी डेटा में हमने बहुत ही कॉशियस रहना है, क्योंकि द पर्पसेस ऑफ द डेटा वेरी, it may prove misleading for us if we without knowing the purpose, without being cautious इसका इस्तेमाल कर दें, राइट। फिर जहाँ तक कलेक्शन की बात है, दोनों में हमें स्टेटिस्टिकल यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, जो प्राइमरी डेटा है इट इज कलेक्टेड फ्रॉम स्टेटिस्टिकल यूनिट्स, वायर सेकेंडरी डेटा आर नॉट कलेक्टेड फ्रॉम any statistical unit but from different publications. इसके बेसिकली सेकंड हैंड जो डेटा है इसके सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा हमारे पास होते हैं। और जो प्राइमरी डेटा है इसके लिए हमारे पास टेक्निक्स है, जैसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। जो हमारी प्राइमरी डेटा है इसके लिए हमें टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, मेथड्स हमारे पास मौजूद है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन है, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर है, मेल क्वेश्चनियर्स होते हैं, शेड्यूल्स बाय एन्यूमरेटर्स वगैरह वगैरह, ये टेक्निक्स हैं। वी हैव टू डिस्कस दिस वन बाय वन इन कमिंग डेज। एंड फॉर द सेकेंडरी डेटा देयर आर नो सच टेक्निक्स बट वी रिलाई ऑन द सोर्सेज। इसके लिए हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं, वी हैव द पब्लिश्ड सोर्सेज एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज, राइट। जैसे लेबर गैजेट है, पॉपुलेशन सेंसस है, ये प्रिंटेड, ये हमारी पब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं, तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करते हैं, वी हैव टू डिस्कस इट इन कमिंग डेज। बट अब हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ डेटा, सिंपली दो टाइप की डेटा है। अब कौन सी हम इस्तेमाल करेंगे, वेदर वी विल यूज द प्राइमरी और द सेकेंडरी डेटा, इट्स फॉर द इन्वेस्टिगेटर टू डिसाइड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इंक्वायरी whether primary or secondary data is to be chosen. Such a decision needs a precise analysis. और उस एनालिसिस में किस चीज़ का ख्याल रखना है, फर्स्ट he has to keep in mind while choosing the data whether he chooses primary or secondary, लेकिन इन बातों का उसने ख्याल रखना है। फर्स्ट
नेचर एंड स्कोप ऑफ इंक्वायरी क्या है, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस क्या है उसके लिए, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम क्या है, और स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेटर क्या है। नॉर्मली देखिए जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो प्राइमरी डेटा को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके पास मैन पावर भी ज़्यादा, पैसा भी ज़्यादा, फंड्स की कोई कमी नहीं होती। लेकिन जहाँ तक इंडिविजुअल्स का ताल्लुक है, जैसे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ठीक, वो प्रेफर करते हैं सेकेंडरी डेटा का यूज़ करना। ठीक, तो मुझे लगता है इट इज़ सफिशेंट फॉर टुडे इंशाल्लाह। जो ऊपर हमने कहा कि जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, ये हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।